हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो सीजीएल टीयर वन 2025 के लिए जो हमने 50 डेज 50 मॉक सीरीज चलाई है उसमें आज मॉक 21 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जीएस वाला सेक्शन। मल्लिक अर्जुन मंसूर who belonged to Jaipur Athroli Gharana was awarded dash in 1992. What was the impact of British colonialism on India's textile industry? Increased competition, डिक्लाइन एंड दी नहीं, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन हुआ था। Which of the following Indo-Greek king is mainly remembered as eponymous hero of the Buddhist text Milind Pano? Meander. Dash is expenditure incurred for purposes other than the creation of physical or financial assets of the central government. Creation of financial और physical assets के अलावा कौन सा एक्सपेंडिचर बनाया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू is expenditure incurred for purposes other than creation of physical and financial assets. Plan या revenue या capital. Plan expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, non-plan ये हो सकता है, तुक्का लगाते हैं इस पे। What is the name of the scheme launched by the Haryana cabinet to provide job to 5,000 youths in first phase? Haryana Youth Employment, IT Employment Initiative, Haryana Skill Development. Scheme launched by Haryana to provide jobs to 5,000 youths. Haryana Skill Development या Youth Employment Scheme. IT सक्षम युवा स्कीम। तुक्का लगाएंगे इसमें भी। Margamo Port is situated in which estuary of India? Marmagao Port. Which is a slow cooking process that begins around 320 degree Fahrenheit, removes water from a sugar and breaks down the sugar into complex polymers with a sweet, nutty and bitter taste, thus produces a golden brown to dark brown color. Caramelization ज़्यादा ठीक लग रहा है इसमें। Which of the following performance begins with Keli Kottu calling the audience to attention, followed by the Todyam? Keli Kottu भरतनाट्यम कथकली कथक ओडिसी। केली कोट्टू तमिल का कुछ लग रहा है। भरतनाट्यम कथकली इनमें से ही कुछ होना चाहिए। फॉलोड बाय दी तोड़ायाम begins with केली कोट्टू। कथक तो हो नहीं सकता है, ओडिसी भी नहीं। इसमें एक गैस ले लेंगे। Who is the author of the book The Prisoner of Bhopal? The first meeting of All India Women's Conference was held at Pune, Chennai, Prayagraj. All India Women Conference. Consider the following about soil formations. Soils don't contain the organic, ये तो गलत है. Dissimilar bed rocks may have similar soils. ये शायद सही हो सकता है. Dissimilar bed rocks may have similar soils. Which of the folk dance is related to the Odisha? घुमरा, दमाली, दांडी, कोली, पता नहीं. Which of the following is a synthetic radioactive element in group 15 and whose chemistry is yet to be established due to very short life and availability and very little amount? Which of the following statements are true about public goods? Non-rivalrous in consumption, excludable, positive externalities. इसका मतलब ही समझ नहीं आया. All asset management companies are regulated by which of the following? All asset management, Security Exchange, State Bank of India, National Insurance Regulatory and Development Authority या SEBI. All asset management companies. All asset management ये होना चाहिए.
The governor of an Indian state, before entering upon his office, takes an oath or affirmation before Prime Minister, President, Chief Justice या Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction relation to the state. ये होना चाहिए क्या? गवर्नर देखो, प्राइम मिनिस्टर रखवाते हैं। गवर्नर और अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं क्या? ओथ, शायद प्रेसिडेंट ही है। Which trophy is given to the winner? एक सेकेंड, 41, 42। अटॉर्नी जनरल अगर सीजीआई के सामने लेगा तो फिर ये चीफ मिनिस्टर या सीजीआई। थोड़े से। Which trophy is given to the winner of the Tour de France cycling race? Pandit Swapna Chaudhary is associated with dash instrument. Swapna Chaudhary. As per census, what is the percentage growth of male population? I think yeah. The act of summoning a joint sitting of both the houses, which is headed by Speaker of Lok Sabha, comes under the dash powers of the President of India. Legislative powers. Playing against which country did Sachin Tendulkar score the hundredth of international cricket? Hundred of international cricket. पता नहीं। Who is cricket fans को पता होगा। Who published the logistic equation model of population growth in 1838? Population model. Wallace. Model of population growth. शायद ये है। Archimedes, Bernoulli's, Pascal's, Boyle's law, designing ships and submarines, hydraulic brakes to fill by care to calculate lift force on an aerofoil. अरे इधर कौन सा क्या है? 1 2 3 4 तो नहीं है इधर कहीं। पास्कल्स लॉ मुझे लग रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए होगा। A2 कहीं है, एक जगह है। तो क्या आर्किमिडीज डायनामिक शिप्स, क्या बर्नौलीज फोर के लिए है, क्या बॉयल्स ये है? ठीक है, कैलकुलेटर किया सही है। In January 2024, who among the following has been honored with Assam's highest Assam Vaibhav? Nadira Deru Devanji. Who assumed charge as 28th Director General of IB? 2022 में अरविंद कुमार मेहता था, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ए या बी होगा, पर रहने देते हैं। हर्ड मीन्स प्रोनाउंस, एनुंशिएट मतलब होता है शायद सही तरीके से बोलना, इसका ऑपोजिट होगा मिसप्रोनाउंस। ठीक है, रिपीटेड आर्टिकुलेटेड, हाँ तो यही सही है। इसका एक्टिव वॉइस देखना है, कौन सा एक्टिव वॉइस में है। सर्वे वॉज कंप्लीटेड, गलत। माय डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन, जॉर्ज वॉज ऑनर्ड विद एन अवार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। आई विल क्लीन द हाउस दिस वीक, ये है एक्टिव वॉइस। adversely thoughts, the adversely thoughts need to be curtailed as the adversely नहीं, the adverse thoughts होना चाहिए, और क्योंकि नीड लगा है तो प्लूरल वो चाहिए। now the positivity rate is the proportion of samples that returns positive, which is indicative of the spread of the infection, which is indicative of the spread of the infection. The positivity rate is the proportion of samples that returns
सैंपल्स डेट रिटर्न होना चाहिए। डेट रिटर्न सैंपल्स प्लूरल ही है, प्लूरल चाहिए, सिंगुलर लगा रिटर्न। इफ यू सेंड मी अ लेटर ऑफ लव, आई विल गिव यू अ फ्री पेंटिंग इन द मीडियम ऑफ योर्स। योर्स चॉइस नहीं, योर चॉइस होना चाहिए, योर्स गलत है। आफ्टर months of dedicated training, her body had become noticeably stronger. After months of dedicated training, इसमें positive, her body had become noticeably more stronger after months of training. Her body is the result of months of training. Positive degree of comparison. Her body grew the strongest after months of dedicated training. Her body has become not only stronger but firmer. अरे भाई, यही है फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। प्रोवेस, ये शायद चालाकी से रिलेटेड है। प्रोवेस का सिनोनिम होना चाहिए एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज होना चाहिए फिर। A person whose job is to work as a member of the crew of a commercial or naval ship, especially who is below the rank of officer, sailor, navigator, sailor, cruiser. Person whose job is to work as the member of the crew of a commercial or naval ship or boat. Naval ship, sailor, navigator, who is below the rank of officer. सेलर तो यार थोड़ा ऑफिसर वाली चीज होगी, क्रूजर भी ये होना चाहिए था पे। अच्छा क्वेश्चन था पर 83। So it is not surprising that conspiracy theories about climate change exist. These ideas help them make sense of unpredictable weather patterns. People have long believed in supernatural explanations or extreme weather events throughout history. Humans have sought to understand and explain the natural world in various ways. People have long, तो डी के बाद सी सही लग रहा है। People have long believed in supernatural explanation for ये सब. So it is not surprising that conspiracy theories about climate change exist. These ideas help them make sense of unpredictable weather. डीसीबीए लग रहा है। डीसीबीए तो है नहीं, डीवीसीए होना चाहिए क्या, डीवीएसी। तो ए से चेक करते हैं। सो इट इज, ए से तो स्टार्ट नहीं होने वाला, बी से। दीज आइडिया, व्हाट आइडियाज, तो बी से नहीं स्टार्ट हो सकता, सी से हो सकता है, डी से देखते हैं। पहले डी का। Throughout history, humans have sought to understand and explain the natural world in various ways. These ideas help them make sense of unpredictable weather patterns. So, it is not surprising that conspiracy theories about climate change exist. People have long believed in supernatural explanations for weather events. So, C wala, people have long believed in supernatural explanations for extreme weather events. These ideas help them. ये better लग रहा है, unpredictable weather patterns. चलो, reliant मतलब कि बेहतरीन, courageous, negotiate का synonym और discuss करना। We have drift away from the traditional systems and have caused damage. Have caused लिखा है तो इधर पे we have drifted away. We have drifted away. अबे वे लिखा है के बाद we have drifted away and have caused damage. सही है। ये 5 क्वेश्चंस बाद में 3 4 5। तो deliberate मतलब जानबूझ के, इसका ऑपोजिट है accidental. Conscience, CONSCIENCE, CIENCE। मैवेयर की स्पेलिंग सही है, सुपरसीड सही है, परजीवेरेंस की सही है। परजी, अरे गलत है, RANCE होना चाहिए। मैक्सिम, ये कुछ प्रोवर्ब होता है मैक्सिम, हाँ। मैक्सिम प्रोवर्ब्स, विच हैज नो स्पेलिंग एरर, ओके। बुटीक की स्पेलिंग सही है। ऑफर्स अ वाइड सिलेक्शन ऑफ स्टाइलिश अपैरल की स्पेलिंग शायद गलत है, हाँ गलत ही है।
शी केयरफुली सिलेक्टेड हर। अच्छा अपैरल की पूछ रहा है, देखो हर जगह अपैरल 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 आ गया। APPAREL इधर है, इधर गलत गलत गलत, चलो। Real Madrid was dash when two of its most important players this and this joined other club। तो दिक्कत हो जाएगी इनको फिर। रियल मैड्रिड वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन, मतलब दिक्कत में कंफ्यूजन में। एट लास्ट में स्टोनी बेरिंग द एसिड नेक खड़ा। हिज क्यूरियोसिटी वाज डेस बाय द, एक सेकंड इसको मैं चार्ज पे लगा लूं पहले। हाँ, हिज क्यूरियोसिटी वाज piqued by the unusual story। piqued नहीं, piqued तो झांकना, piqued। a person who believes that all events are predetermined। fatalist मतलब जो किस्मत में बिलीव करता हूँ। कास्ट पल बिफोर स्वाइन। हम्म, भैंस गाय के बीच बजाने जैसा कुछ है, मतलब कुत्ते को घी नहीं हो सकता, ऐसी बात है। बी सिलेक्टिव इन शेयरिंग वंस पोजेशन, नहीं। शेयर वैल्यूएबल थिंग्स व्हेन विद एन अप्रिशिएट, हाँ ये सही लग रहा है। सीक विजडम फ्रॉम वाइज, नहीं। कीप वन ट्रेजर हिडन, नहीं। चलो, क्लोज टेस्ट। At the recent Central Rural Work Conference in China, the challenges and current situation of three rural indicators, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर ली जाए। हम्म। The challenges and current situation of three rural indicators, agriculture, rural areas, and farmers were discussed with special dash paid to the country's food security, were discussed with special attention paid to the, हाँ, country's food security, बढ़िया। This comes amid, मतलब बीच में, the growing importance placed on food security by the country's policymaker, for whom it is a top national dash, top national priority, discretion in customer surveillance thing. Amid an increasing complex geopolitical environment, climate shocks, trade disruptions, and an uncertain global food market, China has elevated food security and food supply resilience to the highest level in terms of political priorities in recent years. At present, China is the world's biggest food producer, a leading food exporter, and has the world's biggest food reserve systems. Yet Beijing remains dense about safeguarding its food security over the long term. Yet Beijing remains this. China is the world's largest food producer, a leading food exporter, and has the world's biggest food reserve. Yet Beijing remains dense about concern about food security over the long term, aiming to increase self-reliance in agriculture. हाँ, articulated, concerned ही होना चाहिए, articulate क्यों होगा अगर। Concerned about safeguarding its food security over the long term, aiming to increase self-reliance in agricultural production through China has initiated various efforts to increase dash food production. Has efforts to increase dash food production, domestic food production and self-sufficiency. Domestic मतलब खुद ही के हैं। खैर अब पूरे 20 मिनट तो होने ही वाले हैं। China's overarching food security strategy, there has been a discernible shift in focus from achieving self-sufficiency in grains and cereals and about security. To support these measures, China has also implemented key policies and dashed substantial financial resources to support both. Has implemented key policies and devoted substantial financial। ओके, 83 क्वेश्चन में क्या था? ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन। चलो आओ जीएस, जीआई पे। व्हाट विल कम आफ्टर दिस, इसके बाद जो है एक लाइन खींची, डॉट खींची, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची, डॉट, तो इधर पे एक लाइन खींच के डॉट लगा देंगे। तो फोर्थ, फोर्थ बन, नहीं फोर्थ नहीं, थर्ड बनना चाहिए। 6 3 9 3 12। अच्छा, तो +3 + 4 नहीं हुआ। 21 में कितना जोड़ा है वो छोड़ो। 8 + 5 13, और 13 के बाद कितना जोड़े, यहाँ पे कितना है? 3 + 11, 5 7 9 होना चाहिए। 5 फिर 7,
फिर 9, फिर 11, हाँ। 5, 13 + 7, 18, 18 + 9, 7, 9, 13 + 7 तो 20 होगा ना यार। 20 + 9 हो गया सेट। ऑड नंबर जुड़ रहे थे उसमें 5 से। वेर अगर ये है, राइट अगर ये है, कार्ड ये है, वर्ड विल बी ई एंड ए। ई और ए देखो इधर पे 7058, इधर पे ई क्या है? 058, 5 या 8 में से हो सकता है। ई आर, ई और आर है 5 और 8 में से। इधर पे क्या क्या है? ए आर है, 8 है इधर, तो आर तो 8 है ही। ए इधर पे 7058, इधर है 7, तो ए है 7। व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस एंड दिस? तो तुम्हारा ए है 7, और क्या पूछ रहा है? ई। इधर पे ई था 70, ई 7058, इधर है ई आर 7058, इधर है ए आर डी 7 है, 8 है। तुम्हारा आर था 8, 7058, 8245, इधर ही कॉमन, इधर ही कॉमन, तो ई है 5। तो 7 + 5 12 हो गया। +3 क्या यूनिट डिजिट में? इधर +3 तो नहीं चल रहा है, × 2 कर दें अगर तो 28, हाँ। तो 14 को देख के मैं बोल रहा हूँ, 14 28, ठीक है। × 2 किया, 284 +1, इसका × 2 कर दिया अगर 56, 57, फिर +2 कर दिया, तो इसका भी × 2 कर दो। 14 10 11, अब +3 कर दो, एक के बाद दो के बाद तीन, 1147। इसमें क्या है? 11 है, 8 है, तो 8 का क्यूब, 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर, 359 में से माइनस करके देखो। 8 है, 3 है, 2 है, 238। नहीं यार, तो ये जो है आपको डिवाइड करेगा नहीं, 11 से जा रहा है, 11 से 2 बार पे है 22, तो 3 बचा, 1 बचा 9, 11 से जा रहा है क्या? नहीं। 11 + 8 क्या है? 19 है, 19 का स्क्वायर 361, 361 में 2 माइनस, 7 और 9 क्या है? 16 है, 256, हाँ ठीक। तो 20, 256 था ना, तो इसमें 2 जोड़ दोगे तो 529 हो जाएगा। 529 होता है 23 का स्क्वायर, तो 20 में 3 जोड़ोगे तब 23 बनेगा। ये हो गया। 256 का स्क्वायर रूट किया, 69 उसका हाफ कर दिया, ये इसका वो किया तो 22 आया, उसका हाफ ये, इसका करोगे तो आएगा 14, 14 का हाफ 7। इसकी वाटर इमेज बननी है। फर्स्ट तो सही लग रहा है खुद में। नहीं नहीं, ये वाली लाइन नहीं बनी है इधर अंदर ट्राइंगल में। तो फर्स्ट, सेकंड सही लग रहा है, थर्ड तो गलत है, फोर्थ और उसमें क्या फर्क है? ठीक है, तो सेकंड सही है, फोर्थ में ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है। इगेलिटेरियन की वाटर इमेज, ई, ई के बाद ये नहीं तो जी, ए, एल, आई, टी, ये भी, ये दोनों गलत। टी के बाद ये था, तो फोर्थ। करेक्ट बनाना है, तो 7 के बदले 11 के बदले 12 लाए, 7 12 84, +6 माइनस 12 के बदले 11, तो 22 + 5। देखते हैं, ये -17 है, ये -11 है, 73 बन गया, बिल्कुल बन गया। इधर पे क्या आना चाहिए? हम्म
फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड ये लाइन ऐसी होनी चाहिए और ये ऐसी। सेकंड तो सही लग रहा है, सेकंड सही है, थर्ड नहीं है, सेकंड ही सही है। 13 जनवरी 1896 को जो है मंडे था। अच्छा, 1700 में -3 लिखते हैं या +3 करते हैं, 1800 में माइनस या +2 करते हैं। चलो कैलेंडर की ये चीज तो याद नहीं आ रही, तो अब क्या करें, छोड़ो इसे। रीजोलिंग, रिजोलिंग, रीसोलिंग शूज में होती है, तो किस चीज में ज्वेलरी, ज्वेलरी में क्या होगी, पॉलिशिंग होगी। 14 और 27, by interchanging the given two numbers which of the following equations will be correct। 14 और 27 चेंज करना है बस। तो इधर पे ये तो हो गया 43 माइनस 47 प्लस 11 इंटू 40, तो ये तो बना 154। 154 में से ये माइनस हुआ 47, तो बना 7। ये 14 में से ये गया 10, इसमें 43 जोड़ दिया तो 150 करना चाहिए। पहला तो गलत हो गया, करेक्ट ही पूछना था। और 14 इंटू 11 अगर करेंगे तो 154 माइनस का 47 प्लस का 5, ये है माइनस का 42। 2 और 11 सही है दूसरा वाला, तो सेकंड वाला सही है सिर्फ। पार्ट अगर ऐसे कोडेड है, 16 एक 17, 20, 37 और 18, ये हुआ 5, ये 4, और इसमें 4 माइनस कर दिया, हो सकता है 4 ही माइनस कर रहे हो या नंबर ऑफ लेटर्स। इधर पे देखो 3, तो ये 15 और 20 35 और 14 49, नंबर ऑफ लेटर्स ही माइनस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 7 में से 5 गया 2, और 20 और 8 और 2 10, और 20 30 9, और ये 12, तो 51। सिलॉक्स की आपको फिर से बता देता हूँ, मेरी वीडियो है 30 मिनट्स की, वो देख लोगे आप जान जाओगे बिना वेन डायग्राम के कैसे करते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जिसको वेन डायग्राम से करना पड़ता है, सारे क्वेश्चन में कोई नीड नहीं है, आप बिना पेन उठाए सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कलर है, पेंट है, पेंट है, टेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। कैसे रिलेशन होता है मैंने आपको बताया उस वीडियोस में, ठीक है, देख के समझ सकते हो। तो पॉजिटिव्स के नेगेटिव नहीं बनते, और कहीं पे भी ऑल नहीं है तो ये नहीं बनने वाला। क्या कलर कलर है, पेंट टेंट है, नहीं, वर्ड्स भी सेम नहीं है तो कोई इधर और नहीं बनेगा, तो नन फॉलोज, सीधे बोल सकते हो फटाफट, है ना। तो डी का ऑपोजिट एच का ऑपोजिट, एल का ऑपोजिट ई का ऑपोजिट, और 23 + 2 25, 19 + 2 15 +3 हो गया है, तो ये गलत। 22 + 2 24। एज पर विच ऑफ द क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, टी की बेटा होगा कोई, उनकी क्यू डॉटर इन लॉ होनी चाहिए टी की, ठीक है। तो चलो, P plus Q, P is the father of Q, P is the father of Q, and Q is the wife of R, और R is the brother of S, and S is the son of T। इधर ही से साबित होगी ये चीज, तो उठा लो पहले वाले में। 8 लोग हैं, sitting in a row facing north, M sits at extreme right end। 1 2 3 4 लोग इधर, 1 2 3 4 लोग इधर, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। M sits at the extreme end, तो इधर M बैठा है आपका, ये राइट है, राइट, ठीक है, आर नहीं। एम एक्सट्रीम राइट पे बैठा है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ, तो 3 यहाँ पे बैठ गया, ये ओ बैठ गया,
L sits 4 to the left of N and immediate right of Q. ये लेफ्ट है, L नहीं है, ठीक है, इसको इधर लेफ्ट लिख दो। हाँ, L है, N और Q से मतलब है उसका Q who does not sit at one or at extreme ends. P sits immediate right of R. P जो है R के जस्ट बगल में बैठ रहा है। अरे, R के जस्ट राइट पे P बैठ गया। L sits fourth to the left of N. N जहाँ भी है, एक दो तीन चार का फर्क देके L यहाँ पे बैठ रहा है, फोर्थ है ना। अच्छा, तो 3 का गैप होगा इनके बीच में, फिर L बैठ रहा होगा। एंड इमीडिएट राइट ऑफ Q, और यहाँ पे Q है। अगर मैं Q को तो यहाँ बैठा नहीं सकता क्योंकि Q एक्सट्रीम में नहीं है। तो अगर Q को यहाँ बिठाया तो क्या, 3 1 4, 1 2 3 4 का फर्क डाल के मैं यहाँ पे N लिख दूँ, यहाँ पे L लिख दूँ। P सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, और P R को साथ में बिठा लेना है तो R और P इधर। तो हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, ऑब्वियस है S इधर आएगा। तो 1 2 3, ओ, आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम बहुत कम बचा है। In the given series, if all alphabets are arranged in alphabetical order, then position of how many will remain unchanged. तो SETHRJO खतरनाक बढ़ेगी ये। तो पहले तो आना चाहिए E, के बाद GHI, I के बाद J के बाद O आ सकता है। अच्छा, D भी था, तो D है, E है, O के बाद P के बाद क्या दिख रहा है, R दिख गया, S दिख गया, T दिख गया, M भी था, M और L दोनों है। M है तेरा, तो पहले LMO ऐसे होगा, इधर होगा WI। देखते हैं सब सही है या नहीं। तो SETH 4 हो गए, RJOP 4 हो गए, ये 4 हो गए। 4 3 12 प्लस 3 15 लेटर्स हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये, और 3 बिल्कुल सही है। तो SS एक ही कॉमन है, GTHH कॉमन है, IRJJ OLPM DO GPIRWSYTM, फिर L। तो दो ही, तीन ही सेम है फिर, तीन। बस सही गिने हो यार, चार नहीं होनी चाहिए। Find the letter which will be opposite to facing T. P है, P है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो T के सामने U हो गया, P के सामने D हो गया। अगर एक फेस कॉमन हो गया, P के सामने D हो गया था। अच्छा, उसके बाद क्या आना चाहिए? ये पहली बात तो 90 घूमा, फिर से 90 घूमा, फिर से 90 घूम जाएगा। पहले क्या हुआ कि ये चीज आधी कटी और शेडेड हो गई, फिर जो दूसरा फिगर था वो आधा कटा लेफ्ट हैंड साइड से, और वो भी शेडेड हो गया। फिर जो सर्कल है ना वो भी कटना चाहिए, शेडेड शेडेड सर्कल, शेडेड, ये शेडेड, ये शेडेड, नीचे आना चाहिए पहली बात तो ये गलत, सेकंड और थर्ड गलत, नीचे आना चाहिए, सर्कल कट गया। और ये, तो पहली डॉट, पहली डॉट, पहली डॉट। ठीक है, तो इधर इधर एक एक, इधर एक थी, एक आई, एक आई, फिर जैसे ही इधर आई तो इसके साथ एक और आई, इधर आई तो इसके साथ एक और, तो फोर्थ है बस आंसर। बहुत टाइम लग रहा है भाई। Some peacocks are parrots, some pigeons are birds. No bird is owl, bird का bird से relation negative का, bird bird, owl का भी relation। All parrots are birds, आप all parrots बोल सकते हो, नहीं। Some peacock, possibility पूछ रहा है, क्या some peacock pigeons हैं? क्या some peacocks, bird bird, owl owl, parrots,
कोई रिलेशन नहीं है, क्या सब पीकॉक पेजेस हैं? नहीं है तो फिर फॉलो हो जाएगा। सेकंड फॉलो कर रहा है शायद। ओ पी एम, OPMN, फिर हो जाएगा LOPMNOM, LOPMNOM, LOP, ठीक है। LNOP कहाँ है? LNOP देखना है, थर्ड। 11 को 17 से, 17 को इससे, 17 का स्क्वायर होता है 289। इसमें 11 का स्क्वायर होता है 121। 17 का स्क्वायर होता है 289। इसमें से ये माइनस किया, ये 6, ये 168। इसमें 11 जोड़ दिया, 179। और क्या सीन हो सकता है? देखो, अच्छा, दिस इंटू दिस, A इंटू बी, 5 3 115। 23 5 115। तीन, 3 का इंटू 12, फिर इंटू 6, इसका इंटू 20, 20 का इंटू 10। दिस इंटू जो भी नंबर हुआ है उसका हाफ इससे। 36 इंटू 36 का स्क्वायर रूट, 100 इंटू 100 का स्क्वायर, तो 12 इंटू ये सही है। ये सही है पहली बात तो। 49 इंटू 7, ये भी सही है। और ये क्या है? और इसमें इंटू ट्वाइस किया है ना 36 में, तो इसका इंटू 2। हाँ, इसका इंटू 2। दिस इंटू 2, ये बिल्कुल सही है बस। 11वां क्वेश्चन, ये छोड़ो। मैथ्स पे आते हैं, सिर्फ 23 मिनट बचे हैं। आज खतरनाक लेवल की चीजें हुई हैं। इंग्लिश भी बहुत लेंथी थी। मशीन ए के प्रिंट 24 मिनट में। मशीन बी जो है ए से लेस एफिशिएंट है, बी है ए है। अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो इसकी एक कम 3 है। ठीक है, ए कैन प्रिंट बुक इन 24 मिनट्स, बी है ए है। तो 3 इंटू 24, ये हो गया टोटल वर्क। With the help of machine C, all three machines can together can print the book in 8 minutes. तो उन सबकी फिर एफिशिएंसी क्या आ जाएगी एबीसी की? अगर सब लोग 8 मिनट में कर रहे हैं तो 8 इंटू 3 9 आ जाएगी। तो सी की कितनी होगी? 4 3 7, सी की होगी 2। तो सी कितने में भर रहा है? 12 3 36। यार गलत क्यों हो रहा है? 3 इंटू 24, ये टोटल हो गया 4 3 7 है ये। 8 में इसको 3 बार काटा, 3 इंटू 3 9 हो गया। 4 3 7, सी की एफिशिएंसी 2। 2 इसको काटेगा 12 बार पे, 12 इंटू 3 36 होता है। क्यों गड़बड़ हो रही है? बी जो है, बी एफिशिएंट था यार सी से कम। ऐसे, ये 4 था, ये 3 था, तो इधर ये होना चाहिए। हाँ, तो ये 4, ये 3। अगर ये भी होगा तो ये 2 बार काटेगा, 48 कुछ बनना चाहिए। छोड़ो इसे, पता नहीं क्या चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है। पैनिक मोड ऑन है, अभी 20 मिनट बचे हैं। The simple interest earned on a sum is 2% of the sum and the number of years। ठीक है, अगर पी किया है तो मुझे क्या मिला है? 2% ऑफ द सम, ये मिला है पी पे। एंड द नंबर ऑफ, पी से पी कट जाएगा इवेंचुअली। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स जो है, जो टाइम है, वो क्या है? ट्वाइस द रेट है। अगर रेट ही पता करना है तो आर है, तो टाइम क्या है? वो भी 2 आर है, अपॉन 100। 100 से ये 100 कटा, 2 से ये 2 कटा, आर स्क्वायर आया टी। क्या बात कर रहे हो? आर टाइम के बराबर आ गया। तो ओह, टी था, इधर 100 ही करना पड़ेगा। देखो, आर स्क्वायर, 200 से 100 कट गया यार आर। अच्छा, आर स्क्वायर 1 आ रहा है उस हिसाब से तो। फाइंड दी रेट 1 ही है यार।
मैं देख ही नहीं रहा हूँ क्यों बंद बच रहा है। अब देखते हैं आज क्या मार्क्स आते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, दिमाग खराब हो रहा है अभी से। ए सेक प्लस बी टेन अगर सी है तो ऑब्वियस है ए सेक माइनस बी टेन होगा वन बाई सी, ठीक है, फॉर्मूला होता है सेक टेन का। तो ए टेन प्लस बी सेक क्या होगा? छोड़ो उसको जरा। तुक्का अगर देखूं तो मुझे लग रहा है डी। ठीक है, थोड़ा तुक्के वाले हिसाब से भी लगा देते हैं ऐसे जरा। अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट सी सीजर एट हो। पहली बात तो पैरेललोग्राम है। ए सी एंड बी सी डी बाइसेक्ट हो। ए ओ बी है तुम्हारा 110, ए डी बी जो है वो 40 है, और ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये 40, तो ये 40, ये 110 है। पता करना है ए सी बी। देखो जब ये 110 है तो ये 70 हो गया, ये पूरा 110 हो गया, 70 40, तो ये 70 हो जाएगा। हम्म, इधर पे क्या होगा? साइन 90 माइनस ये है तो कॉस 60, वन माइनस इसको क्या लिख दूंगा, साइन वन माइनस वन, जीरो है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम टू शिप्स आर दिस एंड दिस शिप्स ऑपोजिट साइड पे, हमेशा इसको एक बार पहले पढ़ लेगा लो, शिप्स ऑपोजिट साइड पे है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक है 30, एक है 60। अपन ने ही पढ़ा है कि ये √3 30 वाला हो जाएगा, एक 60 वाला हो जाएगा 3, या 60 वाला हो जाएगा। ये होता है √3, ये होता है एक, और ये होता है एक, ये होता है √3, तो ये होता है 3, हाँ। हम्म। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शेप इज इतना, तो अगर 4 की वैल्यू 60 दी है इंटू 15 दी है, देन फाइंड दी 15 इंटू √3 हो जाएगा सीधा। ठीक है। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज, मैन प्लस सन की जो एवरेज एज है वो 54 है, तो दिस इंटू टू, द रेशियो इनका जो की जाएगा 4x, 27, एक्स की वैल्यू। अब मैन 27 इंटू 3, 81, मैन की एज आ गई। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 6 डिजिट नंबर इज x इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इन सब का जो ये जो x है, ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी x, 3 से डिवाइड होना चाहिए 57। मतलब इसका इस पार्ट का मतलब है कि ऊपर बचा a माइनस वन, माइनस में ऊपर क्या बचेगा, एक ऊपर है a+4 a-4, मतलब a-4 बचा, a माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव का 3। अरे अरे। हम्म। O इज द सेंटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ए सी, बी ए सी पूछ रहा है। पहली बात तो जैसे ही मैंने ये खींचा, ये जो कि रेडियस, तो ये 48 48, ये हो गया मतलब 96, 180 में 80 प्लस 8, ये 84, ये जो होता है इसका ट्वाइस होता है, तो 42। ठीक है, जो पूछा है वो आंसर 42 है। और देखो अब धमाके घोड़े जितनी ज्यादा तेज हो सके दौड़ाने हैं। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जो है इतना इतने का इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, ठीक है। वो पूरा ऐसी शीट थी, उसको घुमा घुमू के ऐसा बना दिया है, ठीक है। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इसका जो एरिया है वही क्या है कि उसका सरफेस एरिया होगा, है ना। इसका जो एरिया होता है, जो इसका सरफेस एरिया होता है, नहीं 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 सॉरी, 14 × 11 है ये, 14 × 11, यही बोलते हैं यार, 2 पाई
आर, तो इसको 7 बार काटेगा, 11 इसको 2 बार काटेगा, तो आर आ गया 49/2। ठीक। तो फाइंड द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है। ये तो हो गया 343। इसका मल्टीप्लाई लेवल थोड़ी करते रहेंगे अब बैठ के, तो कुछ तो होगी गड़बड़। ओह, ये है 14 × 11 के हिसाब का। हाँ यार, तो जो 2 पाई आर है 14 होगा, आर जो है 49/22 है, यही होना चाहिए फिर। एक और बार देखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। 7 ने इसको 7 बार काटा, इसने इसको सीधे काट दिया, 2 ने इसको 11 बार काटा, 2 ने इसको 7 बार काटा। 343 × 7 अपन, या तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, 50 - 1, और फिर सबसे बड़ा 4981। नहीं, 4901, इसका डिवाइड करो 11 से। नहीं हो रहा, छोड़ो छोड़ो, ऐसे लेंदी क्वेश्चन में टाइम देना नहीं चाहिए था वैसे तो। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सन सी विच इज, छोड़ो इसको भी। A man walks a distance of from point A to B at इतने हैं, from B to A at 24. If he takes इतने hours to complete the journey, what is the distance from A to B? A man walks at a distance, देखो यार डिस्टेंस ही तो कांस्टेंट है, तो A से B तक गया, B से A तक, तो इधर पे क्या है, स्पीड है, ये स्पीड है, तो टाइम क्या होगा, ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3 और 2। If he takes इतने hours, what is the distance? डिस्टेंस कांस्टेंट थी, हमारे लिए टाइम कांस्टेंट है। इफ ही टेक कितने आवर्स, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस कितनी आएगी। क्या कर रहा हूँ मैं, ये ए से भी गया इतना, बी से आया इतना, इससे एवरेज स्पीड निकाल लें क्या, 2h1h2/h1 + h2, 442। 2 से 21 बार, 3 से 7 बार, 3 से 6 बार। ठीक है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम कर दिया, इससे ये गया। तीन से सात बार, 3 से 6 बार, और ये ए का आया है, तो हाफ से डिवाइड करते 24 × 372, टोटल डिस्टेंस था ना वो। टू कॉर्ड्स है, पी क्यू आर एस ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ। टू कॉर्ड्स पी क्यू और आर एस ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ। पी क्यू है और आर एस पता नहीं कैसे बन रही है, आर एस यहाँ से तो नहीं बन रही है। अगर ओ पी है, टू प्लस हो ऐसा, अगर ये एस है, एक्स है, तो ये x+2 है। और अगर जो आर एस है वो पूरा 12 है, तो ये 12 - x होगा। अच्छा समझ गया। और जो ओ आर है वो अगर 6 है, तो ये अगर 6 हुआ, तो x तुम्हारा 6 है। फाइंड द मेजर ऑफ ओ क्यू, सीधी सी बात, ये आपका 6 है, 6 + 2 ये 8 है, ये 6 है, ये पता नहीं, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 36/8। 4 से 9 बार, 2 बार 4.5, ठीक है, वो 5.5 कुछ 4.5 आ गया। In a tank there are two inlet pipe, here ये इनकी एफिशिएंसी है, are kept open alternatively for each minute। ये 7 × 4, ये है 14 × 3।
ये 7 into 4, तो 14 into 8 48, 48 into 3 28 84। ये इसको काटेगा 3 बार पे, 42 इसको काटेगा 2 बार पे। पी और क्यू की एफिशिएंसी है। तो 2 मिनट में 3 + 2 5 भर रहे हैं ये। अच्छा 16 पे जाओ सीधे, 16 टाइम्स पे, हाँ। तो 16 बार पे ये हो गया 32, और ये हो गया 80। तो कितना और भराना है? इतना और भराना है 1 मिनट में। ये आके 3 भर देगा, फिर 0.5 मिनट में ये एक भर देगा क्यूब। तो 13.5 मिनट लगते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ ईयर 2016 एंड 2018। एक्सपोर्ट है ब्लू, इंपोर्ट है येलो। एक्सपोर्ट ऑफ ईयर 2016 एंड 2018। एक्सपोर्ट 150 से कहता है, 110, 120, 40, 50, ठीक है। 110, 120, ये 120, और 18 का कितना है? 150, 140, 130। एक्सपोर्ट ऑफ ईयर दिस एंड दिस टुगेदर, मतलब 250 जो है इज X% ऑफ, ये जो है कितने परसेंट है, और 4 ईयर एवरेज ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट जो है उसका, तो 250 माइनस ये इम्पोर्ट तो हो गया 130। सॉरी सॉरी, 250 में 260, 280, 270, 270 से ये माइनस करेंगे तो 150 आएगा। 150 इम्पोर्ट ऑफ 4 ईयर एवरेज ऑफ इम्पोर्ट्स, सबके इम्पोर्ट्स चाहिए। ये कितना है? 310 का है, 150 तो इधर आया 160, ये 150, ये कितना है टोटल? 300, 290, 280, 280 मतलब 150 है इधर। फिर कितना है? 260, 270, 270 में क्या माइनस करना है? 150, मतलब 120। ठीक है, 150, 150, 300, 300 और 280, 580। 4 ईयर एवरेज, तो 580/4 एवरेज हो गया। ये जो है कितना परसेंट है इसका? इसने इसको काटा, दो ने, 2 बार 2 ने 29 टाइम्स, ये हो गया 5000/29 कुछ करके। अबे यार, क्या चीज है ये, छोड़ो इसे। P प्लस क्यू अगर ये है, और P इंटू क्यू अगर 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? P प्लस इसका क्यूब निकालेंगे अगर, तो वो आएगा K³ - 3K इंटू P इंटू क्यू। ठीक है, तो 216 में से 6×3 = 18, 18 into 4 जो होगा 72 होगा। तो 4 बचा, 4 into, ठीक है 4 बचा। एक, ये कितना है? 21 है, तो 4 बचा ये, और 3 से गया 12, 42, 43, 432, 432 डी है। अब इधर फॉलोइंग पाई चार्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस? पूरे स्कूल की बात कर रहा है, रहने दो। लोन लिया है 5,000 का फ्रॉम बी, 5% सिंपल इंटरेस्ट में। बी गिव टोटल अमाउंट received after 2 years to see at 10% for simple interest fees. A took a loan of 5,000 from B at 5% simple interest. ठीक है, and B give the total amount, and B give the total amount received। अच्छा, टोटल अमाउंट ये रिसीव करेगा 5,000 पे, मतलब 20 बना के 25 और 0, 250 और 500, तो 5,000 250 रुपये। ठीक है, एंड गिव द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years। शट यार, 2 years के हिसाब से 5,500 वाली बात हो गई। ठीक है, 2 years टू सी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल के लिए। फिर जो है टोटल इंटरेस्ट अर्न, तो पहले तो उसने 500 रुपये कमाए, अब इस पे कितने कमाएगा? 30, 1,500, 1,50, 1,650 और 500, 2,150।
16 5 21, हाँ। 2 है, 5 है, 1 है, 2 है, 8 15, इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है? 0.4 है पहला तो, 0.5 है दूसरा तो, 15 से 0 पॉइंट, तो ये 80 आया, इधर 5 लगाया, 5 बचा तो 3 लगा दिया, 0.6 है। लो, 3 5 है सबसे बड़ा। If 80% of 1200 girls are present and 95% of total number of boys and of इतने girls of 1200 girls are present and 95% of total number of boys are present. If total number of students in the school are 2000, then अगर 1200 गर्ल्स है तो बॉयज होंगे 800। फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंट, तो प्रेजेंट है 12, तो 1200 में 20% एब्सेंट होंगी गर्ल्स, और इसका 5%, 5% हो गया 1/20, तो ये 40, और ये 250, सॉरी 240, 240 प्लस 40 280। हाँ, द बेस ऑफ अ पिरामिड इज एन इक्वल पिरामिड है, पिरामिड हाँ, पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्लांट एज ऑफ द प्रिज्म, पिरामिड इज इतना। अच्छा, स्लांट एज जो है इधर से निकल के आती है, मतलब तुम्हें मेन हाइट चाहिए अभी, तो और फिर ये तो क्या होता है, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ये √3/4a, तो हाइट तो इसकी 3 है, स्लांट एज कितनी दी है? 4, 4 ही दी है ना। हाँ, इधर पे 90 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, भाई ये तो √7 आ रहा है भाई। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पिरामिड का? बेस पेरीमीटर 4 2 8, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, तो उसकी 3 है। हो गई कुछ गड़बड़ हो गई इसमें भी, इतना आसान क्वेश्चन में भी दिक्कत हो रही है। 2 मिनट बचे हैं बस, इस वजह से दिमाग खराब हो रहा है पूरा। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ इतने, शॉपकीपर रन्स, ठीक है, if article is marked इतने more than its CP, then find the MP of article। तो अगर उसके पास MP जो है उसकी वो 100 है, तो SP कितनी हो रही है? 84 SP हो गई है। तो प्रॉफिट CP पे प्रॉफिट कितना कमा लिया उसने? 119/100, ये कमा लिया 84 सामने। If article is marked इतने रुपी more than its CP, अबे यार अगर CP ये है और मार्क प्राइस क्या है? 100x प्लस 13 से, रहने दो ये क्वेश्चन भी यार, छोड़ो। 1.5 मिनट बचा है, कोशिश करेंगे ऐसे सही से कर लें। हाँ, तो पहले ये होगा सॉल्व, 4 3 12 प्लस 14, 26/21, इनटू 7/13, 2/3, तो ये जो पार्ट है ये है 2/3, 5/8 ऑफ, तो इसको जोड़ेंगे इंटू 3 कर देंगे, 6 और 15, 10/15, मतलब 2/3, 5/8, 6/15 का मतलब यार 2/5 होगा, 5 से 5 1/4, फिर प्लस हुआ 1/4, फिर प्लस करना है, इंटू 3 करो, -4/12 मतलब 1/3, 2/3 माइनस 1/3 मतलब 1/3, प्लस 1/4, 7/12, नहीं आ रहा। 12 14 26/21 इंटू 7/13
ये 3 बार पे, ये 2/3 प्लस 5/8 ऑफ 3 3 6, मतलब 2/5, 2 से 4 बार, 2/3 प्लस 1/4 प्लस इंटू 3, मतलब -4/12, मतलब 1/3। 2/3 -1/3, तो यार 1/3 ही होगा, प्लस 1/4 करेंगे। छोड़ो, 123.5 मार्क्स आए हैं, हद से ज्यादा बेकार मार्क्स। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यार। इंग्लिश में बस मार्क्स अच्छे हैं, जीएस के भी कह सकते अच्छे हैं। मैथ्स में बहुत बुरा बंटाधार हुआ। इसमें देखो 8 मिनट, इसमें 10 मिनट इंग्लिश और जीएस में। इतने तो मार्क्स इतने अच्छे भी नहीं है इसमें, जो 8 मिनट लग गए। 8 मिनट, 10 मिनट, 18 मिनट तो इसी में हो गए। 18 और 17, 35 मिनट। 25-27 मिनट का कुछ हिसाब बचा था मैथ्स से। अरे यार क्या कर सकते हैं, देखते हैं जरा ऐसी बर्बादी क्यों हुई आज। उसमें भी गलत हो गए रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि अनअटेम्प्टेड वाला देखते हैं। यार इनका तो मुझे तरीका नहीं पता, मेरा एक तरीका अलग है, तो मैं बताऊंगा। 1800 वाला कल अभी देख के आऊंगा, रिवाइज करके। 1800 में कुछ प्लस माइनस करते थे फाइनल आंसर में, वो चीज याद नहीं आ रही। इधर पे दोनों करेक्ट थे। इसमें तो मुझे मुझे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये समझ आ रहा है कि क्या गलती हो सकती है इधर। ऑल पेज। अरे यार ये नहीं पढ़ा इसमें कि ये कैन भी लिखा है, पॉसिबिलिटी मांग रहा है, तो अगर कंक्लूजन गलत है तो पॉसिबिलिटी सही होती है ना, अपन ये पढ़ा है, तो ये उस हिसाब से सही हो जाता है। पर मैंने सीधे जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ऑल पेंट आर कलर, कैन भी कलर्स को आर कलर पढ़ लिया। अच्छा इंग्लिश में भी देखना पहले। हर बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ वंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या होता है? is used to denote the mere existence of some quality of what we speak. It is used when no comparison is made. अच्छा। अच्छा यार, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलेगा तो आपका कंपैरिजन करके नहीं दिखाना है, ठीक है। हर जगह पे दिखा रहा था, इधर पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सीधे बता रहा है स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी क्योंकि डेडिकेटेड ट्रेनिंग की, कंपैरिजन है ही नहीं। हर क्यूरियोसिटी वाज स्पाइक्ड बाय द अनयूजुअल स्टोरी। पीआई की मतलब हो जाता है मसालेदार जैसा कुछ, अराउज इंटरेस्ट, ठीक है, मसालेदार चीज हुई कुछ। It accurately describes the effect of unusual. His curiosity was spiked by the unusual story. अनयूजुअल स्टोरी से क्यूरियोसिटी मसालेदार हो गई, ये थोड़ी कोई बात हुई। पर ठीक है, जब दिया है तो सही हो सकता है। इसमें क्या है? ए है 24 मिनट, बी ले रहा है, करके देखता हूँ। ए 24 मिनट ले रहा है, बी जो है ए से 25% लेस एफिशिएंट है। ए है, बी है, बी ए से 25% लेस एफिशिएंट है। टोटल वर्क क्या हो गया? ए की एफिशिएंसी इंटू ए का टाइम, ये हो गया। With the help of machine C, all three machines together can print that book in 8 minutes. तो फिर ये सब लोग अगर 8 मिनट में कर लेते हैं, डिवाइड कर दोगे इसका 8 से। अच्छा, तो फिर वो 9 नहीं बनेगा ना। पहले मैंने ये 3 लिख लिया था, तो ये 8 से 3 करूँ तो फिर ये ए बी सी की जो अपन 9 लिख रहे थे वो 12 आई। अब ये अगर 7 है, ये 12 है, तो बचा कितना? 5। और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पॉइंट में तो आंसर आएगा। 24 इंटू 8 क्या होता है? 192। इसलिए मिस्टेक हो गई एक, बहुत ही अच्छे लेवल की। ये तो यार तुक्का लगाया था। इसमें देखो क्या करते हैं। ए टेन बी, ए सेक प्लस बी टेन है, वो सी है। तो अब अपन को निकालना है, अपन को ए सेक बी टेन, अपन को निकालना है। अरे इधर ए सेक है ना, ए सेक बी टेन, और इधर है ए टेन बी सेक। तो इसको अपन कह देंगे, अगर ये एक्स है तो यही तो निकालना है।
तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कर दें क्या ये चीज? फिर कॉमन वॉमन ली जाती है उसमें, फिर इसमें से इसको माइनस किया जाता है। रहने दो, ये कर लेना, बता दिया बस कि क्या करना है। इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, एक्स को खाली करोगे क्योंकि इधर पे कोई स्क्वायर नहीं चढ़ा है, तो एक्स को खाली करोगे तो सामने स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इसीलिए फाइनल आंसर में भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है। 11th, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जो है ना इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना। अगर एक पेपर है ऐसे 14x11 का, अच्छा, और इसको तुम घुमा दोगे तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो इसके 14 के बराबर ही होगा, और इसकी हाइट तो यार 11 है। इस फोल्डेड विदाउट, अबे रुको रुको, दिख गई क्या गलती है। इधर पे ये कह रहा था हाइट 11, तो इसका मतलब क्या है कि पेपर को ऐसे रखोगे और इसके अलोंग घुमाओगे, क्योंकि इससे हाइट क्या रहेगी, 14 ही रहेगी, इसको घुमा दिया, ऐसे बना दिया। हाइट 14 है, ये 11 है, तो ये गलती थी। 2 पाई आर, 11 को मानना था, 11 से ये 2 बार गया, तो आर आएगा 7/4। अब निकाल दोगे सीधे आंसर, पाई आर स्क्वायर और एच। साथ इसको 2 बार काटेगा, तो इसको 8 बार काटेगा, 2 से 4 बार, 2 से 11 बार, 49 का मल्टीप्लाई करोगे इससे क्या बनेगा, 5 4 3, 5/4। 4 से ये जाएगा 1 बार पे, 13 बार पे, तो 52, 4 टाइम्स पे, और 60 मतलब 7 पाई। फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो, हो गया। वही बात है, अगर टाइम कम बचता है तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। 2% है, ए एंड बी वेरियस सेक्टर्स इन ईयर 2022। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सन सी। सी की इन्वेस्टमेंट पता करनी है। ए और बी की इन्वेस्टमेंट दी है, सी की पता करनी है। सी जिसकी इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है कि 40% ऑफ सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सन ए टुवर्ड मेडिकल। ए की जो मेडिकल में इन्वेस्टमेंट है ये है 25, 28 है ये तो, इसका 40%, और लेकिन किस किस का है? ए का मेडिकल में एंड स्पोर्ट्स सेक्टर्स में, मेडिकल और स्पोर्ट्स में 30, 31, 32। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी टुवर्ड्स स्टील, बी की स्टील में जो कि है 20। ये खुद ही हो गया 60, 60 20 80, 80 का 40% ज्यादा, 64 इज 84, सॉरी 14 into 6 इज 84। अब क्या है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी which is the percent of the sum of this investment of this 84। फिर 84 क्यों आ रहा है? अच्छा, जो कि 40% मोर लिख दिया मैंने ये गलती से, 40% ऑफ है, तो 6 into 4 24 हो जाएगा। अभी भी कुछ गलत है क्या? विच इज द परसेंट, ये 50 है, 60, 70 80, अच्छा 60 कहाँ से बन रहा है, ये 80 है। 80 का 36% करोगे 32 आएगा ये आंसर। देखो सही है। और कौन सा क्वेश्चन गलत है ये, मतलब ये तो अनअटेम्प्टेड ही रह गए। हम्म, इसमें अच्छी गड़बड़ हो गई। इज X%, ये जो था क्या था कि X% है और 4 ईयर एवरेज ऑफ इम्पोर्ट्स, ये तो नहीं कर रहा दोबारा, क्योंकि इसमें दिख ही नहीं रही है लाइन अच्छे से क्लियरली, उसी में कुछ मिस्टेक होगी होगी। मेरा तो डिनोमिनेटर में 49 आ रहा था, क्योंकि
इम्पोर्ट्स का सम ये, और इनका इम्पोर्ट 590 है। ठीक है, उसे छोड़ो। द टेबल शोज मेल टू फीमेल रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्कूल जो है, तो 100% की वैल्यू है 24,000। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ, एक सेकंड पहले 100% की वैल्यू क्या दी है? हाँ, 24,000 दी है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24,000 में से दो जीरो हटा दिए, 240। अब आंसर क्या निकालना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स इन ऑल स्कूल 5 कंबाइंड। अरे, मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंस। अच्छा, तो ये क्या है? मेल कितने हैं? 3/5। ये कितनी है? 2/5। डिफरेंस इनका एक ही है, तो 1/5। इधर पे डिफरेंस है 1/5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स? 1/5 है, ये इधर है 4, इधर पे है। ये हुआ 3/5 इनका डिफरेंस। दूसरे का हुआ 1/3, फिर हुआ 2/12 मतलब 1/6, फिर आया कोई डिफरेंस नहीं टी में। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इंटू टू 3/6 मतलब 1/2। और ये क्या हुआ ना, 4/5। तो 10 7 18 बटे 10 और 240। तो यही होगा आंसर, 18 × 24 कुछ करके देंगे। छोड़ो ये, मैंने तो सोचा इससे अगर शॉर्ट में हो गया तो ठीक है, वरना क्या करना। नहीं हो रहा पर वो शॉर्ट में ऐसे। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वही अप्लाई कर लो, बस क्या है। द बेस ऑफ पिरामिड था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड देखना था। द बेस ऑफ पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तुम्हारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 4√3। अबे यार, इफ द स्लांट एज ऑफ द पिरामिड इज इतना, स्लांट एज तो इधर से होती है पॉइंट से, और ये जो इधर इधर से होती है वो होती है स्लांट हाइट। तो इधर का, इससे यार इसकी हाइट थोड़ी निकाल देंगे, इधर से तो यही आएगी स्लांट हाइट। स्लांट एज से स्लांट हाइट आएगी। मैंने यही कंफ्यूजन में कर दिया। तो ये तो होगा 2√3। स्लांट एज कितनी दी है? 4। तो दो का, दो से काटा, दो से काटा, दो, दो का स्क्वायर, ये 3 1, तो ये आएगा 2। ठीक है, स्लांट हाइट आ जाएगी 2। और जो स्लांट हाइट 2 है, इसके पास भी तो ला सकते हैं, पर और क्या। ये हाइट भी डायरेक्ट निकाली जा सकती है वैसे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये हाफ करते हैं हाइट का, या क्या करते हैं पता नहीं। छोड़ो यार, मेरा मूड नहीं कर रहा अब बिल्कुल। स्लांट हाइट और वो निकलेगी स्लांट एच माइनस एस का स्क्वायर करके, जो कि 2 निकाल दी थी अभी। अबे, जब ये निकल गई है तो हो जाएगा ना, हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इनटू ये, हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ही तो चाहिए रहती है, हाइट थोड़ी चाहिए रहती है। हो गया बस इतने में। आफ्टर गिविंग इतने परसेंट डिस्काउंट, शॉपकीपर स्टेल इतना। सीपी है, एमपी है, कितने का डिस्काउंट दिया? 16 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? इतना का। इन दोनों की डिफरेंस दिया हुआ है। 35 की वैल्यू है 135। कितने से जा रहा है? पता नहीं कितने से जा रहा है। 5 7 बार, 5 से 135 × 2, 10 को काट दिया। 7 से जा रहा है, 7 से एक बार नहीं जा रहा। रुकना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता करनी है ना। 135 × 2 / 7 × 84 एमपी पता
135 into 2 मतलब कि 10 26 27 into 12, 12 7 84, 0, और जो 24 दो 24 8, 24 और 8 कितना होगा? 32 24। पता नहीं फिर नहीं पता, जब इतना आसान तरीके से नहीं हो रहा है तो कैसे होगा? अरे यही तो अपन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इन दोनों की जो वैल्यू निकली उसका इससे डिवाइड, चलो मल्टीप्लाई कुछ करने में गलती कर दी, बाकी सब तो सही है। इसकी वैल्यू निकालने में बताओ गलती होगी। 106 मिनट हो गए। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 12, 2 14, बन तो 26 ही रहा है, नीचे 21 ही बन रहा है। डिवीजन का साइन 7/13 हुआ। 13 ने 2 बार काटा, इसमें 3 बार काटा, तो 2/3 प्लस ये पूरी एक चीज सॉल्व होगी। 5/8 इंटू इंटू 3 3 6, तो 6/15 मतलब 2/5, 2 से 4 बार, तो ये तो पूरा 1/4 है। माइनस 5/12 -3/4 है, इंटू 3 कर दिया, तो ये क्या हुआ? -4/12 मतलब -1/3। 2/3 -1/3 से 1/3 तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा, प्लस 1/4। 4 + 3 हो रहा है 7/। अभी भी सेम ही आंसर आ रहा है 7/ करके। उनका 9/12 है। पता नहीं यार क्या बकवास है ये सब। ये तो क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। इन ट्राइंगल एबीसी, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सी आर, ए है, बी है, सी है। ए के ऑपोजिट है B+C, बी के ऑपोजिट है A+C, सी के ऑपोजिट है A+B, ऐसा दिया है। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए मीट्स BC एट डी। ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो यहाँ पे मिल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ BD। BD पता करना है। जब भी ऐसा देते हैं एंगल बाइसेक्टर करके, दिस कर दो। अगर ये पूरा इतना है तो BD क्या होगा? B+C - X करके कुछ होगा। ठीक है जरा, AB/AC = BD/DC करना चाहिए। वो किया है। चलो किया, AB/AC, इसको बोल सकते हो AB/AC = BD/DC, ठीक है। जो भी है सामने है, 123 मार्क्स आए, कोई नहीं। अब अपन आगे इम्प्रूव करेंगे। अगर मेरी वीडियोस से कोई भी आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।